वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। प्रियंका ने अपने ओपन पॉडकास्ट पर फिर की बात। खुद को एस्टैब्लिश करने के बाद प्रियंका ने अपने स्टार्टिंग फेज के खोले राज। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा इस वक्त मुंबई में है। हाल ही में एक्ट्रेस एनमैक अटेंड करती नजर आई थी, जहां करण जौहर के साथ उनकी मुलाकात एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई थी। वहीं बीती शाम जब एक्ट्रेस एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई तो एक्ट्रेस ने एक बार फिर बॉलीवुड पॉलिटिक्स पर बात की। दरअसल पीसी बीती शाम मुंबई में अपनी अपकमिंग अमेजन सीरीज सिटाडेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर क्यों इतने लंबे वक्त के बाद उन्होंने बॉलीवुड पॉलिटिक्स और उन्हें कॉर्नर किए जाने पर बात की। I think that first of all, when I was on the podcast, I was asked about the journey of my life, and I spoke about, when I was young, when I was 10, when I was 15, when I was 22, when I was 30, 40, whatever. So I was talking about the truth of my journey, and I think now I was confident enough to talk about that phase of my life. I think now where I am, I was okay enough to kind of articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave. I moved on a long time ago, and then I made my peace with it. And I think that's why it was easy for me to talk about it in an open manner, in a safe space. इतना ही नहीं, पीसी ने मीडिया से बात करते हुए वेस्ट और इंडिया के वर्क डिफरेंस पर भी बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें दोनों इंडस्ट्री में कोई फर्क नजर नहीं आता। Similarities are that movies are movies, TV is TV. Wherever in the world you go, the language is the same. You'll have a call sheet, you have a call time, you have an AD standing outside your trailer saying you're late, come on, you have to know your lines, So the madness is the same. I think the differences are cultural, and that should not be touched or changed. I think the cultural differences are, there's a lot of paperwork in Hollywood. Like there's stamping, there's signing when you finish working, and there's like your turnarounds, and there's a lot of emailing, and a lot of that happens. Versus here, we are a little bit more lax with time, Indian stretchable time and all of that. But I think that the cultural differences are what I found different, but otherwise I think the medium of filmmaking is the same in both places. वहीं बात करें सिटाडेल की तो प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेजन के सिटाडेल को साइन करने की वजह भी बताई। एक्ट्रेस से पूछा गया कि उन्होंने इसे साइन करने में कितना वक्त लिया या फिर वेट किया। Not for me. I was very clear. This conversation started about 5 years ago, and it's taken that long because the show is extremely ambitious, and there was a lot of development that happened. But what was presented to me by Jennifer Salke, who's the head of Amazon Studios, was she wanted to create an international, global franchise, which is an original IP, which truly connects the world. So when we talk about diversity, Amazon is very much about diversity, and true diversity is represented internationally, not just with having different skin tones, but hearing the way people speak, actually delving into culture. And this show has the incredible ability to span across every country, every continent. So I didn't even know the story, and I was like, yep, doing it. प्रियंका के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके को एक्टर रिचर्ड मेडन भी मौजूद थे। एक्टर ने मीडिया से बात करते हुए अपने कैरेक्टर पर भी बात की और वो अपने कैरेक्टर को आउटसाइड वर्ल्ड में किस तरह से देखते हैं ये भी बताया। How damaged they must be in certain ways in order to choose this kind of life. And I think that's something we kind of got to explore with both of them, and hopefully we'll have more opportunity too, is delving into who they are, to be someone who is being someone else every day, and on top of that then playing another character all at once. These are really complicated, intricate humans who do kill people, who do bad things, who have questionable moral judgment. They're complicated humans. वैसे सिटाडेल का हिंदी अडॉप्शन भी रेडी हो रहा है, जिसमें वरुण धवन और समांथा रूथ प्रभु एक्शन करते नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका से इन दोनों एक्टर्स को एडवाइस देने पर भी सवाल किया गया कि वो इन्हें क्या समझाना चाहेंगी, जिस पर एक्ट्रेस ने क्या कहा, सुनिए।
I don't think I can give them any advice. They're both such accomplished actors in their own way. There's nothing I can say. I met Varun recently at the NMACC event, and he was telling me how the shoot's going and how exciting it is, and there are some really cool threads that connect the other installments to our installment. So we were talking about those, and you'll find out when you start watching the show how we're all connected to each other. But it's really fun, and I can't wait to see that, because I think DK and Raj, the filmmakers, are so amazing, they're so talented, and that they're going to bring their own spin to the Indian installments. Very exciting. बड़े पर्दे पर फिर लौटेगा शिवा। फिर शिवा के प्यार में डूबी दिखेंगी ईशा। क्या इस बार सामने आएगा देव का चेहरा? आखिर क्यों अलग हुए थे देव और अमृता? सितंबर 2022 में रिलीज हुई रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला। ये लोगों के प्यार का ही कमाल रहा कि मूवी ने चंद दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। ब्रह्मास्त्र की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद डायरेक्टर अयान मुखर्जी जल्द ही इस फिल्म का दूसरा और तीसरा पार्ट लेकर हाजिर होने वाले हैं, जिनके रिलीज का ऐलान अयान ने कर दिया है। अयान मुखर्जी ने मंगलवार को ब्रह्मास्त्र के सीक्वल का अपडेट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मास्त्र के सीक्वल की शूटिंग एक साथ होगी। सीक्वल 2 पार्ट्स में बनेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग समय पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोनों की रिलीज डेट में लंबा गैप नहीं होगा। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ब्रह्मास्त्र अस्त्रावर्स पर बात करने का समय आ गया है। पार्ट 1 पर मिले लोगों के प्यार के बाद मैं पार्ट 2 और 3 को बनाने पर फोकस कर रहा हूं, जो कि मैं जानता हूं कि पार्ट 1 से ज्यादा बड़ा और महत्वाकांक्षी होगा। हमने तय किया है कि दोनों सीक्वल की शूटिंग एक साथ होगी, लेकिन उन्हें अलग अलग समय पर रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने एक और मूवी को लेकर भी जानकारी शेयर की है। हालांकि इस मूवी के टाइटल का खुलासा उन्होंने नहीं किया। अयान ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए बताया कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के 2 सीक्वल बनेंगे, जिनमें से एक दिसंबर 2026 और दूसरा दिसंबर 2027 में रिलीज होगा। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में जहां शिवा की कहानी दिखाई गई थी, तो वहीं सेकंड पार्ट की स्टोरी देव पर बेस्ड होगी। यानी कि दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि आखिर देव और अमृता की जिंदगी में तूफान कैसे आया और दोनों बिछड़ कैसे गए। वहीं तीसरे पार्ट की स्टोरी किसे लेते हुए बनेगी, इसका खुलासा अभी भी अयान ने नहीं किया है। अयान के इस बिग ऐलान के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अयान की पोस्ट पर फैंस के ढेरों कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। जल्द शुरू होगा किसी का भाई किसी की जान का जबरदस्त प्रमोशन। देश के अलग अलग शहरों में लॉन्च होंगे फिल्म के 4 पोस्टर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों पठान की रिलीज के साथ इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जो ऑडियंस को काफी पसंद आया है। इसके अलावा अब तक किसी का भाई किसी की जान के 3 गाने भी रिलीज हो चुके हैं, जो YouTube पर खूब धमाल मचा रहे हैं। इसी बीच फिल्म का चौथा गाना येंतम्मा भी रिलीज हो गया है, जो दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं लग रहा है। दरअसल इस गाने में सलमान खान के साथ वेंकटेश दग्गुबाती, पूजा हेगड़े और ऑडियंस को सरप्राइज देते हुए रामचरण भी नजर आ रहे हैं। लुंगी डांस के साथ साथ कई रूप और रंगों से भरा ये सॉन्ग फुल एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है। चलिए अब इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज और प्रमोशनल प्लान्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जैसे फिल्म अपनी रिलीज के करीब आ रही है, वैसे ही मेकर्स ने भी प्रमोशन के अलग अलग तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को किसी का भाई किसी की जान के 4 नए पोस्टर लॉन्च किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्टर लॉन्च देश के 4 अलग अलग शहरों मुंबई, दिल्ली, इंदौर और लखनऊ में सलमान खान के फैन क्लब के हाथों होगा। साथ ही खबरें हैं कि 6 अप्रैल को ही फिल्म के ट्रेलर की लॉन्च डेट बताई जाएगी। आपको बता दें कि किसी का भाई किसी की जान का टीजर सामने आने के बाद से ही फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बन रही मल्टी स्टारर इस फिल्म में सलमान खान के साथ कुछ यंग जनरेशन एक्टर्स भी नजर आएंगे।
इस फिल्म से श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और शहनाज गिल भी अहम रोल में हैं। इनके अलावा वेंकटेश दगुबाती, पूजा हेगड़े, जगपति बाबू, अभिमन्यु सिंह, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल और विनाली भटनागर भी किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान के साथ दिखेंगे। एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर ये फिल्म 21 अप्रैल को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत, और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं एक ऐसे कमाल के कलाकार, मतलब जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हमें हंसाया भी है, रुलाया भी है, गुदगुदाया है और कभी कभी लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। और अब ये आ रहे हैं अपनी वेब सीरीज लेके जिसका नाम है यूनाइटेड कच्चे। लेट्स वेलकम सुनील ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सिद्धांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, दिल्ली आए हुए हैं आप, और यहाँ के मतलब खाने और मौसम का तो मतलब हर जगह चर्चे होते ही रहते हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे जैसा आपने कहा मौसम भी बहुत अच्छा है। जब से मैं आया हूँ बरसात हुई थी और मौसम कंपैरेटिवली ठंडा हो गया, और खाने का तो आनंद है ही। यहाँ पे एक अलग जायका है, यहाँ की डिशेस जो बनती हैं, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी यही है। मैं ट्रेलर देख रहा था और उसमें स्टार्टिंग में आप कह देते हैं कि घर वर जो भी है सब गिरवी रख के मुझे अमेरिका लंदन जाना है। पंजाबी तो कनाडा जाते हैं, आपकी मतलब लंदन की कैसे टिकट लग गई? मुझे लगता है कि कहीं भी विदेश हो उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कई सारे पंजाबी। हाँ। जो जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे लंदन हो या कनाडा। हाँ, कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं पंजाबी। पर आई गेस स्टोरी उस हिसाब से लिखी गई, या फिर मुझे लगता है कि प्रोडक्शन लेवल पे कनाडा की बजाय लंदन की टिकट सस्ती होगी। हाँ, तो इस वजह से लंदन पहुंच गए। तो शायद इस वजह से पहुंच गए। मेरा अगला सवाल यही था कि हम लोग के वहाँ ऐसा कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगना, और बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की कहानी ना सामने आए ताकि लोगों को पता चले कि ये इलीगल तरीके से ये सारी चीज़ें करना कितना गलत है, और इस पर बहुत ही मतलब दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो कभी आपको मतलब ऐसा हुआ कि आपसे कोई मिला हो, आपकी फैमिली वाले बहुत अब्रॉड रहते हैं, उनसे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई कहानी किससे सुने हो अपने लाइफ में? जी, बहुत सारे किस्से। मैं पंजाबी हूँ और मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी बाहर रहते हैं, तो मैं इलीगल ऐसे किस्से सुने हैं, मैंने पढ़े भी हैं, जो लोग रहते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते हैं, बैंक अकाउंट उनके नाम पे नहीं खुलवा सकते। बिल्कुल। अगर कहीं रूल टूट जाए, ट्रैफिक रूल, तो पकड़ के अंदर कर दिए जाते हैं और फिर वापस भेज दिए जाते हैं। कोई आईडी मांगी जाएगी आपकी। मकान लेना बड़ा कठिन होता है उन लोगों के लिए। सो ये सारे चैलेंजेस हैं, और भी बड़े सारे चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़ते हैं, और उसके बावजूद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ रहना है, तो और लीगल होने की ट्राई करते रहते हैं। तो लीगल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर सालों निकल जाते हैं, और वो लोग बल्कि अपने मुल्क आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फंस जाते होंगे वहाँ पे। हाँ, तो बट वो ऐसी एक होड़ है बाहर जाने की, लोगों को देखा देखी में पहुंच जाते हैं। मतलब वही मैं कह रहा था कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आजकल के डेट में लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं हमारे देश में ऐसा नहीं, या ये नहीं है, वो नहीं, इन सारी चीज़ों को लेके। और जो आपका कैरेक्टर है टैंगो का, मतलब कितनी मेहनत लगती है एक इस तरह से अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में कि जो सही मैसेज है वो भी ऑडियंस तक डिलीवर हो जाए, और आपने तो अपना काम कर ही दिया है। तो प्रिपरेशन वगैरह कैसे, सब कुछ ये सारी चीज़ें मैंने देखे हैं इस तरह के लोग, जो टैंगो का किरदार है, जो पंजाब से जाता है यूके सेटल होने के लिए, रहने के लिए। तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, जाते हैं बाहर। तो ये, और मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता था उससे कई चीज़ें, जैसे उसकी स्ट्रगल है। जो मैं भी यहाँ मुंबई आया था, तो मुझे पता है कि नई जगह पे जाते हैं तो स्ट्रगल कैसी होती है, पर उनकी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है टैंगो की, क्योंकि ये इलीगल है, तो मैं तो लीगल, और अपने लोग सब, तो वहाँ पे जाके नया माहौल, नई चीज़ें, सब कुछ पहुँचना भी मुश्किल, तो उनकी स्ट्रगल अलग है। अच्छा, बहुत लंबा वक्त हो गया, मतलब ये अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो 6 साल की आपने दूरी बना रखी थी थोड़ा सा बड़े पर्दे से, ये कैसे बयां करेंगे आप? इतना लंबा वक्त, इतना इंतज़ार क्यों कराया हमें? मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बीच में किए, वेब शोज़ भी किए, और हाँ, टीवी पे मेरे को काफ़ी अर्सा हो गया आए हुए, और कोई नहीं, अब मैं लग गया काम पे दोबारा, तो वेब शोज़ हैं, फिल्म्स हैं, आएंगी जल्दी। अच्छा, कभी ऐसा सोचते हो मतलब जब अपने घर पे आराम से रिलैक्स करते होगे, जैसे 2am थॉट्स कहते हैं कि शुरुआत की थी कहाँ से, और धीरे धीरे करके आज यहाँ खड़ा हूँ, इन सर कभी कुछ ऐसा कुछ थॉट आता माइंड में अकेले जब रात में बैठते होगे आप, अपनी जर्नी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके?
एक्सपीरियंस ही है सिद्धांत कि आप एक्सपीरियंस करते हैं नई नई चीज़ें अपने करियर के साथ, अपनी लाइफ के साथ, और ये मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और 2AM थॉट कई बार होता है कि साल में 1-2 बार ऐसा होता है कि कहाँ पे शुरुआत की थी, कहाँ पे हैं, या बहुत रेगुलर बेसिस पे तो नहीं सोचता मैं। तो कभी कभार आ गया कोई थॉट ऐसा, तो सोच के मज़ा ही आता है। मज़ा आता है। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे कैसे चीज़ें हुई, और जो सोचा वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको मिल भी जाता है, हासिल भी हो जाता है, तो वो उसका मज़ा तो है सोचने का। अच्छा, अभी बीते कुछ दिन पहले, आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, और वो भी इस वजह से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपने उम्र से ज़्यादा जवान वो लग रहे हैं, और आप भी मतलब फुल ऑन जवान ही लग रहे हैं, कोट वोट पहन के पूरा। तो जब ये दो जवानों का मैं मिलन जवान हुआ, हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप हो जवान, आप बिल्कुल जवान हो। और जब ये दो जवानों का मिलन हुआ, लग तो रहा है फिर कि क्या अब- बात हुई उस दौरान? मुझे ऑफकोर्स मेरा सपना रहा है शाहरुख सर के साथ काम करने का, और मैं उनका फ़ैन हूँ, तो बहुत ही मेरे लिए इज्जत की और ऑनर की बात है, मैंने उनके साथ काम किया, और बड़ा अद्भुत और यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अच्छा, आप दोनों लोग थिएटर से, थोड़ा सा थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो स्टेज वगैरह पे आप दोनों ने काम कर रखा है। क्राफ्ट वर्क की अगर मैं बात करूँ, जो ऑब्जर्व किया होगा उनका क्राफ्ट वर्क कैसा है, उनका तरीका काम करने का? शाहरुख खान है, बड़े सालों से वो बहुत लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं, रूल करते हैं वो इतने सारे दिन। तो हार्ड वर्क आई गेस, एंड ऑल्सो टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट, हार्ड वर्क एंड पैशन, 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो मुझे लगता है वर्क करती हैं। अच्छा, और एक एक्स फैक्टर जो किसी को नहीं पता, क्या? उनका है एक, जो किसी को नहीं पता, वो शायद उनको पता होगा। ऑरा कह लें कि जब वो चलते हैं तो एक पता चीज़- नहीं, कुछ एक एक्स फैक्टर होता है, हम्म, वो आप बयान नहीं कर सकते। वो क्या, वो समझ में आए तो फिर सारे ही नहीं बन जाए। जैसे आपका एक्स फैक्टर है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। वो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर इट। हाँ जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज। थैंक यू सो मच।